Good morning, students. We hope you all are fine and safe. Starting with the second chapter on the trail of our earliest people, we will come to know about the lifestyle, the way of living, their culture, their traditions, and about the Stone Age we will learn in this chapter. We will learn about the earliest people and the uses of stone. That means in this chapter we will learn about the Stone Age. What will we learn about? Stone Age. Points to learn. Who were they? यानी कि वो कौन थे? How do we know about the people? यानी कि वो people के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है? How they used to live? What was their lifestyle? Why were they on the move? मतलब वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे? Were they where they used to live? यानी कहाँ रहते थे? What kind of tools they used? What work they did? And how do we classify names and dates? See, if we talk about Stone Age, today is 2020. Now, 2 million years ago, if we talk about, मतलब आज से 2 million years पहले की अगर हम बात देखें तो there were some sites located. यानी कि उसमें साइट्स जब हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने जब कोई खोज की तो कुछ साइट्स मिली जहाँ पे टूल्स मिले. टूल्स इन द सेंस स्टोन्स मिले, बोन्स मिले. ठीक है. और ये एनालिसिस किया गया कि विल कम टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ स्टाइल. वॉट वॉज द एनालिसिस? कैसे एनालिसिस किए ताकि हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जान सकें. द फर्स्ट थिंग वी विल फाइंड ओवर योर इज हु वर दे. तो दे वर हंटर गैदरर्स. हंटर गैदरर्स यानी कि बेस्ड फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. Based from the way in which they got their food. यानी कि the way एक ऐसा तरीका जिसमें से वो जाके अपना फूड कलेक्ट करते थे. यानी कि इससे हमें उनके ऑक्यूपेशन के बारे में भी पता चलता है कि उनका काम क्या था. दे वर हंटर गैदरर्स. हंटर यानी कि शिकार करना और गैदरर्स यानी कि इकट्ठा करना. सो 2 million years ago it was their origin कब हुआ था उनका? 2 million years ago. How do we classify names and dates for this 2 million years? यानी कि हम ये 2 million years को कैसे क्लैरिफाई करते हैं? तो archaeologist has divided the Stone Age into 3 different period: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. कौन से? Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. These are the names of Stone Age. Archaeologists are the one who took the initiative to search our ancient history, the one who studied our history. First, if we talk about Paleolithic, let's divide the word. Paleo and Lithic. Lithic came from lithos. Lithos means stones, you know? Lithos means stone. So Paleo means old and Lithic means stone. So Paleolithic, that means the period where they were old big stones. किसका इसका यूज किया जाता था? Big old stones. Now, why were the stones used? It played an important role to find tools, stone tools. Where did it play an important role? To find stone tools, large tools as tools. Now, what did they find? That large stones, बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था as a tools. कब? आज से 12,000 years, 12,000 years ago. यानी कि अगर हम ये स्टोन एज में आके देखें, ये स्टोन एज वाले पीरियड में, तो जहाँ भी 2 million years ago है, तो 2020 से 12,000 years ago की बात हो रही है. तब पीरियड था पैलियोलिथिक का. नाउ
Paleolithic was again divided into three different parts, by which we come to know about the origin of humans. Paleolithic was a period जहाँ से ऐसा माना गया है कि हमारे humans का origin हुआ था. So Paleolithic is again divided into three subparts: upper, middle and lower. Upper, middle and lower. टाइम स्पैन कवर्स द ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि पूरे पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट होती है. ह्यूमन हिस्ट्री दैट इन द सेंस द ओरिजिन ऑफ आवर ह्यूमन, कैसे ह्यूमंस आए और वो लोग कैसी लाइफस्टाइल बिलोंग करते. देन कम्स मेसोलिथिक. मेसोलिथिक इज अ मिडल स्टोन एज. क्या नाम दिया गया है इसको? मिडल स्टोन एज. नाउ पैलियोलिथिक was 12,000 years ago. Now look into the stone age. यहाँ से यहाँ तक 2020 से 12,000 years ago क्या था? कौन सी एज थी? पैलियोलिथिक. नाउ उससे 10,000 years ago it was which stone age? Mesolithic. So here we found some kind of environment change. यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइप के environment में भी changes दिखे. Now the sizes of the tools became small either because of their need. वो क्यों stones की sizes छोटी होने लग गई? ताकि वो छोटे stones को अलग अलग tools के तरीके से use कर सके. Then second thing what they observed over here was microliths, यानी कि small stones. Small stones को वो किसके लिए यूज करते थे? See over here I have one diagram. In this tool you can see the small part. The small part is made of stone. That means जब ऐसा कुछ वो लोग weapon के लिए, मतलब to cut they may be using, to carve they must be using. Older varieties of stone were still used. मतलब जो पहले की वेराइटी थी जो बिग स्टोन से, बट ऑब्वियस उसको स्मॉल स्टोन्स में कन्वर्ट करने के लिए भी उनको यूज किया जाता था. देन कम्स नियोलिथिक. अच्छा, वन मोर थिंग. स्मॉल टूल्स वर मेड जस्ट टू कट फूड, टू कार्व समथिंग, टू स्क्रैप ओवर मेटल. यस. देन कम्स नियोलिथिक एज. That was again 10,000 years ago. 10,000 years ago, if we talk about, there came an agricultural development. What did they took place? Agricultural development, in which further new tools were discovered. So, about Neolithic age, we will study in the next chapter. Now, the question arises that how do we know about these people? यानी कि वो उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? फाइंडिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स द पीपल यूज्ड, मतलब हमने उनके सोर्सेज को क्या बनाया? सोर्सेज वाज दोज थिंग्स जिससे हमें पता चलता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी. फाइंडिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स द पीपल यूज्ड. सो दैट विच काइंड ऑफ टूल्स दे यूज्ड टू यूज? द टूल्स दैट वर मेड ऑफ स्टोन, वुड और बोन्स. स्टोन्स से पता चलता है कि वो किस एज से बिलोंग करते हैं, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक. वुड से पता चलता है कि किस टाइप के ट्रीज उस वक्त अवेलेबल थे. दूसरी चीज बोन्स उनकी फूड हैबिट्स के बारे में भी पता चलता है. और दूसरा पता चलता है कि वो किस टाइप के एनिमल्स भी एग्जिस्ट करते थे. द मल्टीपर्पज यूजर्स, यानी कि टूल्स को वो लोग अलग अलग तरीक़ों के लिए यूज़ करते थे. तो जो स्टोन के टूल्स थे दे यूज्ड इट फॉर कटिंग मिल्स और बोन्स. स्क्रैप बार हमने इंस्क्रिप्शंस में और मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखा था कि वो उसके ऊपर कैसे लिखा जाता था. लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था, राइट. तो वो किसके लिए यूज़ करते थे? स्क्रैपिंग बार, चॉपिंग ऑफ फ्रूट्स एंड रूट्स. नाउ स्टोन टूल्स को ऑल्सो एक हैंडल प्रोवाइड किया जाता था जो आइदर बोन से होता था और आइदर
वुड से. वुड वर अगेन यूज्ड फॉर फायरवुड, हट्स एंड टूल्स. फायरवुड इन द सेंस कि फायरवुड से ये भी पता चलता है कि उनकी कुकिंग हैबिट्स जो थी, सॉरी उनकी जो फूड हैबिट्स थे तब वो कुक भी कर सकते थे फूड को. दूसरा, यहाँ पे हमें फायर की डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि जब वुड्स आए तब उनसे वो लोग फायर प्रोड्यूस कर सकते थे. दूसरा, वो हट्स बनाने के लिए वुड को यूज़ करते थे. टूल्स के हैंडल वगैरह बनाने के लिए भी उसे यूज़ किया जाता था. हाउ एंड वेयर दे यूज टू लिव, कहाँ और कैसे जीते थे. तो नॉमेडिक हंटर्स और गैदरर्स जो थे तो वो क्या हंट करते थे. हमें वी ऑल ऑफ अस नो दैट दे यूज टू लिव इन केव्स. क्या तब आज की जैसे पक्का मकान और बिल्डिंग्स वगैरह थी? नो. तो वो कहाँ पे लिव करते थे? इन केव्स. नाउ नॉमेडिक हंटर्स जो थे, वी नो दैट दे वर नॉमेडिक हंटर्स, मतलब दोज हंटर्स हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So they hunted wild animals, caught fishes or birds, and they hunted and gathered food. By this, when they used to hunt wild animal के पीछे उनको भागना पड़ता था. So they went on moving from one place to another. Fruits, roots, seeds and leaves were eaten. अगर वो फूड गैदर करते थे तो कौन सी चीज़ें उसमें से वो इकट्ठा करते थे? तो फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स, लीव, स्टॉक्स एंड एग्स. इससे हमें और एक चीज़ पता चलती है कि उनके पास हमारे फ्रूट्स, रूट्स, किस चीज़ को कैसे खाया जाता है उनके बारे में पता चला. धीरे धीरे अगर आगे बढ़े तो उनको ये भी पता चला कि कौन सी सीज़न में कौन सी चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी. तब तो जनवरी में, फरवरी में ऐसा कुछ तो था नहीं. सो अब दूसरा चीज़ था, वो हंट करते थे. तो क्या हंटिंग वॉज ईजियर? No. See, if we talk about hunting of animals, obviously the animals were faster and stronger. So, the person who is hunting should be smart enough. तो हमें आज से पता चल कि उनके जो presence of mind थे वो भी बहुत अच्छे थे. Then if we talk about plants, तो हमें पता चलता है this is plant session. So now over here we come to know that which kind of plants are poisonous and which are eatable. मतलब कौन से plants को खा सकते, कौन से को नहीं खा सकते. उनको इस चीज़ की बहुत डीप नॉलेज थी. किस चीज़ को कच्चा खाया जा सकता था, किस चीज़ को बेक करके या कुक करके खाना पड़ता था, किसी को पक जाने के बाद खा सकते थे. हेंस उनके पास सीजन की नॉलेज भी आने लग गई. Where did they live? Obviously they were not stable because they were nomadic. वो एक place से दूसरी जगह जाते थे. तो as they were hunters, they needed to move from one place to another in search of livelihood or food. So अब क्या उस वक्त ट्रेन, बस, गाड़ियाँ ये सब था? No, they used to go by foot. Why? In this, पहले तो अगर उनको इतना दूर चल के जाना पड़ रहा था तो why used to they travel? So the first thing was because they lived in cage. इनिशियली जो आसपास के रिसोर्स पे डिपेंड करते थे, बट कभी ना कभी वो रिसोर्स फिनिश हो जाते. सो दे सेकेंड इम्पॉर्टेंट, what did they, it became second important for them to travel for food and animal. Once they used to go for hunting, तो वो कभी रास्ता भटक जाते थे मे बी, तो वो वापस ही नहीं आ पाते थे. इसीलिए वो वहीं पे रह के अपना नया लाइफस्टाइल डिपेंड कर लेते थे. या फिर अगर वो वापस भी आते थे तो वो एक बार ट्रैवल करके ही आते थे. थर्ड वॉज प्लांट एंड फूड. तो सीजन माइग्रेशन. ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे हर चीज़ डेवलप की जा सकती हो, ठीक है. तो इसलिए वो सीजनल माइग्रेशन करते थे. हर टेम्परेचर में उनके लिए एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं होता होगा. फोर्थ बिकेम वाटर. नाउ प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल, ऑल ऑफ देम रिक्वायर वाटर. ये तो हमें पता है. तो सिंस हेंस वाटर सोर्स बेस्ड माइग्रेशन, मतलब वो वाटर की तलाश में, यानी कि जो पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, उसके आसपास जाके रहना पसंद करेंगे. ड्राइंग ऑफ स्ट्रीम्स एंड ड्राइंग ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड पॉन्ड वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. अगर वहाँ एक जगह पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे अगर पॉन्ड, रिवर वगैरह सब ड्राई अप हो गया तो वो वहाँ पे लाइफ सस्टेन कर पाएंगे
नहीं। तो फिफ्थ वॉज मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ऑब्वियसली येस। अब कोई उनके साथ जो थे, फैमिली थी उनकी, वो कहीं और रह रहे, तो उनको मिलने के लिए भी वो जा सकते थे। Where they used to live. So they used to live in many places. Sites and locations are being found. बहुत सारी प्लेसेस भी मिली है, तो उसमें से ये ऑब्जर्व किया गया है कि दे यूज टू लिव नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर, ऑल्सो नियर द स्टोन अवेलेबिलिटी। वो कहाँ पे रहना पसंद करते थे? तो जहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल हो, एंड वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू सस्टेन देयर लाइफ। अब ये हमें कैसे पता चला? तो हमें ये पता चलता है एविडेंसेस से। ब्लॉक्स ऑफ डिस्कार्डेड स्टोन्स एंड वेस्ट स्टोन शिप्स, यानी कि जो उनके यूज़ किए हुए जो चीज़ें थी, जो स्टोन्स को यूज़ की हुई प्लेसेस थी, उनसे हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। ऑब्वियसली दे यूज टू लिव इन अ नेचुरल केव्स, राइट, एंड यूज शेल्टर्स। तो वो शेल्टर्स कब यूज़ करते थे? सिर्फ रेन, हीट और विंड के हिसाब से। नेक्स्ट वॉट ऑल्सो, वो स्टोन की अवेबिलिटी के पास क्यों अपना रहना पसंद कर सकते थे? क्योंकि वो अपनी हैबिशिएशन साइट्स बना सके। हैबिशिएशन साइट्स यानी कि वहाँ पे वो रह भी सकते थे, और कुछ चीज़ों को बनाने के लिए भी वो इंडस्ट्री एरिया टाइप्स भी उसको यूज़ कर सकते थे। तो उसे हम कहते हैं फैक्ट्री कम हैबिशिएशन साइट्स। हाउ टू मेक स्टोन टूल्स? तो देर आर टू टेक्निक्स ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स। वन इज बाई स्टोन ऑन स्टोन एंड वन इज प्रेशर फ्लेकिंग, यानी कि स्टोन ऑन स्टोन यानी कि स्टोन को स्टोन पे मार मार के, और दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग यानी कि उसे छील के उसके फ्लेक्स बना दिए जाते थे। सो व्हाट वाज द आउटकम आउट ऑफ इट? कि स्टोन ऑन स्टोन फ्रिक्शन जब होता था, मतलब स्टोन को एक दूसरे पे स्टोन जब मारते थे, तो देयर वाज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्टोन्स एंड देयर इमर्ज्ड द fire. Now the sources from which we come to know about this is Kurnool caves, that is in, अच्छा, कर्नूल केव्स को यूजेस अगर उसके देखे जाए तो वहाँ पे ऐश फाउंड की गई थी। ऐश यानी कि राख। तो राख जब मिली गई, ओल्ड ऐशेस मिली गई, तब उसे पता चलता है कि वो वहाँ पे फायर का यूज़ करते थे, राइट। फायर का सोर्सेस कौन से केव से मिला? कुरनोल केव्स। तो वहाँ पे ओल्ड ऐश जब मिली थी, तो उसे पता चलता है कि वो फायर को लाइटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता था, मतलब यानी कि अंधेरे को दूर करने के लिए वो लाइट यूज करते। फॉर कुकिंग ऑल्सो दे मस्ट बी यूजिंग, येस। एंड द थर्ड इज एनिमल स्केयरिंग, वाइल्ड एनिमल्स को स्केयर करने के लिए भी वो यूज़ करते थे। पैलियोलिथिक साइट की बात करें तो टू प्लेसेस वर फाउंड, पटने एंड हंगी। अब पटने इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। वहाँ पे पटने की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिच वर फाउंड, जिससे पता चलता है कि ऑस्ट्रिच कहाँ फाउंड किए गए। ऑस्ट्रिच पहले से ही मौजूद थे। What was their other activity of people of Patne? They use stones to make beads. Beads बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। हंगी में large quantity of stone tools were found and those tools were made of limestone. That means limestone की भी हमें knowledge वहीं से मिलती है। What work they did? Now, हंटिंग गैदरिंग, ये तो हमें पहले से ही पता है कि वो फूड की और लाइवलीहुड की सर्च में हंटिंग करते थे। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल वॉज देयर अनदर, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड को सस्टेन करने उन्हें कोई टूल्स की इम्पॉर्टेंस थी, तो वो टूल्स बनाने के काम करते थे। दे नेक्स्ट केम द पेंटिंग ऑफ केव्स। किस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है? पेंटिंग ऑफ केव्स। तो पेंटिंग ऑफ केव्स की अगर हम बात करें तो 3 प्लेसेस वर फाउंड, सी ओवर हियर। भीमबेटका मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इनकी जो केव्स है उनकी वॉल्स पे से पता चलता है कि वो लोग पेंटिंग के भी बड़े शौकीन थे। पेंटिंग से हमें ये पता चलता है कि वो किस टाइप के कलर्स यूज़ करते थे, नेचुरल या आर्टिफिशियल। दूसरी चीज़, हमें उनकी लाइफस्टाइल और कल्चर के बारे में भी पता चलता है। हु वर्कड? तो हंटिंग का जो काम था, टूल्स बनाने का था, गैदरिंग का काम था, पेंटिंग का काम था, वहाँ पे कौन थे? आइदर मैन और वुमेन, और मे बी दोनों साथ मिलके भी काम करते थे।
Till 1200 years ago, people used to live like this. वो कैसे जीते थे? बस इन्हीं तरीके से. उनका मेन काम क्या था? हंटिंग, गैदरिंग, मेकिंग टूल्स एंड painting. These were the only occupation, and this was their lifestyle before 1200 years ago. Now, धीरे धीरे, obviously there must be change. So, what changes took place? 1200 years ago, changing of environment was observed. What was observed? Changing of environment. So, in which condition something started developing, that was grasslands develop. And जब वो grasslands की study, उन्होंने grassland के बारे में information ली, तब ancient people को ये पता चला कि grain bearing grasses can be used as eating, for it can be used for our eating purpose. So जो grasslands थी वहाँ पे grain bearing grasses ग्रो हो रही थी naturally. तो उसके बाद उनको और एक चीज़ पता चलती है कि एनिमल्स जैसे कि डीर, एंटेलोप, गोट की बहुत सारी वेराइटी, शेप, कैटल, तो ये सारे थे प्रेडेटर्स फॉलोड देम. वो एक जगह से दूसरी जगह इन एनिमल्स के पीछे भागा करते थे. देन दे केम टू नो अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड ब्रीडिंग सीजन्स. यानी कि फिर उनको धीरे धीरे पता चला कि कौन सी सीज़न में क्या ग्रो किया जाता है. आज हमें पता है कि मानसून में हमें सो करेंगे तो हमें कब राइप होगा, अगर हम विंटर में सो करेंगे तो हमें कब राइप होगा, कौन सी चीज़ें को कब सो और राइप किया जाता है. तो देयर इन्वेस्टिगेशन एंड देयर स्टडी इन देयर ओन वे मेड देम understand that they can also start with an agriculture activity through which Neolithic period was described. Now people, why not to herd and rear animals? अब वो लोग ने क्या सोचना शुरू किया कि अगर हम ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर सकते कि जहाँ पे हम खुद एनिमल्स को रियर करें और उसे फिर और कंज्यूम करना भी स्टार्ट करें. तो दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग फिशेस. देन दे थॉट दैट लेट मी ट्राई. एक थिंकिंग आई होगी उनके मन में कि लेट मी ट्राई वंस. हेंस देयर इमर्ज द नीड ऑफ agriculture, and this was a period of Neolithic age. Now started connecting. What did they start doing? They started collecting grains of food, and they learned that where can they be grown and at what time they can be ripe. So in the next chapter we will definitely learn about this Neolithic age, that means their way of cultivation. In this chapter, let's recall, what did we come to know, students? Yes, we came to know about the Stone Age. What was the Stone Age divided into? So Stone Age was divided into 3 periods, right? Which was the first? Paleolithic, second was Mesolithic, and the third is Neolithic. Then we came to know that what was their lifestyle, what kind of tools and weapons were they using, what were the sources through which we come to know about these people. Now, I want all of you to write down the question answers of this chapter and make sure that your books are neat and complete by the time we meet in the school. Thank you. In the next chapter, we will meet with a lesson of geography. Thank you. Have a nice day.